अस्सलाम वालेकुम शारीन, कैसी हैं आप? I'm good. How are you, Mer? I'm good, I'm good. Thank you so much for joining the session. Uh, just for the audience, can you just share about yourself ताकि audience को पता चल जाए एक मर्तबा और I'm pretty much sure सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी. Yeah, this is Shireen Rana, and I'm currently serving as Assistant Vice President, Karate Region at GHRP, AICP. Perfect, perfect. So you know that Shireen, the session is all about having a chit chat or a gupshup about what's the importance of growth. So let's start with what do you think about professional growth? Like what come up in your mind अगर मैं आपको बोलूँ कि professional growth क्या होती है? Mhm. Yeah, I think professional growth has to do with how you grow internally as well and outside as well. So, for a lot of people, professional growth is like, हमने jobs लेनी है आहिस्ता आहिस्ता, and then we're making money. When it comes to professional growth, a lot of people think that, we're talking about making money. However, I think that's not the case. Okay, making money, it's, not the thing. It's basically learning. कि आपने कितना learn किया. ठीक है, intermediate से निकल के there are a lot of people who are actually earning 60 70,000 100 k Pakistani PKR, but are they learning something? No, they're not, because वो क्या करते हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं and all of that, they end up getting into call centers, they're paying hefty amount and all of that, and I've seen people कि वो बिल्कुल stagnant हो जाते हैं उधर, and then they get into a race where जहाँ पे वो पैसे बनाने की एक लाइन में लग जाते हैं, when it comes to sales and all of that, like talking to one sided call, something like that. तो आप एक रेस में लग जाते हैं पैसे बनाने की, तो आप वो भूल जाते हैं कि लाइक व्हाट steps should I take to upgrade myself in my learnings. ठीक है, so I think that's something. Yeah. Okay. So I'm pretty much sure आप इस बात से अलाइन करोगे कि थ्रू आउट पिछले एक दो साल में लोग काफी जो है लिंक्डइन की तरफ आ गए हैं या आप ये कह सकती हैं कि पीपल आर टेकिंग a good care about their LinkedIn, how their LinkedIn profile should look like. So what do you think? What step LinkedIn profile? What step a LinkedIn profile take a part in your overall growth? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि LinkedIn is one of the professional platforms जिसमें आप बहुत सारी चीजें जो हैं अपने बारे में बताते हैं. You are like doing your personal branding. You are connecting with different industry professionals. You are like engagement होती है, आप लोगों से मिल रहे होते हैं, वो एक ग्रोथ का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है. So what do you think about LinkedIn and how it like help you in your overall growth? Acha, so like a decade ago, LinkedIn was there, but nobody knew about it कि वो क्या करता है, उसमें होता क्या है. ठीक है, mostly most of the people you just would use it for job postings कि वहाँ पे you as a professional go there, make your account, you're getting the job and all of that. But I think over the time वो एक social media platform में change हो गया है जिसमें you can post about stuff, and all of that. And I think even like 5 years ago, ठीक है, मैं उसकी बात करूँ तो still उस वक्त इस तरह से था कि लोग इतना पोस्ट नहीं करते होते थे. ठीक है, they would just use it for job posting, something like that, very professional, keeping straight. But I think अब इस टाइम पे events are happening as well. ठीक है, अगर मैं सिर्फ specifically पाकिस्तान की बात करूँ तो a lot of events are happening for HR specifically, थोड़ा क्यों networking units are very important. लोग LinkedIn पे बात मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, they form groups और उधर से वो networking events पे जाते हैं, बात करते हैं, and then उससे आपकी endless possibilities निकलती हैं. तीन चार लोग मिलते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, एंड नाउ वी आर थिंकिंग टू मेक अ ग्रुप, नाउ वी आर थिंकिंग टू हैव फ्यू इवेंट्स, ऑर्गेनाइज फ्यू इवेंट्स. ठीक है, इस तरह से आप अपना एक बिजनेस भी रन कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. And I think LinkedIn is, it's a social media platform now. तो जैसे अब Instagram है आपका Facebook है, so that's a different niche. ठीक है, वो एक completely different चीज़ है. And a lot of people are calling out people कि नहीं भाई, why are you posting your picture, क्या हो रहा है, ये LinkedIn को तो Instagram बना दिया and all of that. No, it's not like that. ठीक है, हर platform का अलग niche होता है. ठीक है, and Instagram has to do with a lot of mixed stuff.
बट आप जब लिंक्डइन की बात करते हैं तो यू कैन नॉट जस्ट टेक अ मेकअप ब्रश एंड स्टार्ट पुटिंग इट ऑन योर फेस, यू या कांट डू दैट, राइट? एग्री। अगर आपने पोस्ट करना भी है, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग क्यों होती है कि आपको लोग पहचानेंगे कैसे? लाइक इफ आई एम गोइंग टू पोस्ट विदाउट माय डीपी, विदाउट एनीथिंग, हाउ विल पीपल रिकॉग्नाइज मी? लाइक आई नीड अ रिकॉग्निशन। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दैट प्रो इन्फ्लुएंसर थिंग टू पीपल रिकॉग्नाइज मी, बट अगर मैं अपनी फील्ड में हूँ, अगर मैं एचआर के अंदर हूँ, या अगर मैं किसी क्रिएटिव फील्ड से हूँ, मैं किसी भी फील्ड से हूँ, I'm from sales, I'm from HR, I'm from, BD, whatever I'm from, right? तो I need recognition. मुझे भी तो चाहिए ना कि लोग मुझे पहचाने मेरे काम से, तो how are they going to do that in this digital world, right? They know me परफेक्ट। by face, something like that, yeah. परफेक्ट। और ये इसलिए भी जरूरी है। अच्छा, इसी से एक और पॉइंट निकलता है कि ऑप्टिमाइजेशन, यूजली पीपल डोंट नो और मे बी डोंट हैव, अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे या ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ध्यान तो नहीं दे रहे। मैंने बहुत सारी प्रोफाइल को गो थ्रू करा है या बहुत सारे लोगों को देख रहा होता हूँ कि वो सिर्फ लिंक्डइन पे होते हैं और दे जस्ट कंप्लीट देयर प्रोफाइल बस एज फॉर द सेक ऑफ इट। दे आर नॉट एंगेजिंग विद पीपल, क्योंकि इट्स मोर लाइक हाउ यू एंगेज टू पीपल, क्योंकि everyone should know about you as a professional. Mm. I'm agree on the point कि हर बंदे का कंटेंट क्रिएशन का स्ट्रेटेजी अलग होती है। कुछ लोग अपना काम डालते हैं, कुछ लोग अपने बारे में डालते हैं, एंड दैट आल्सो वेरी फ्रॉम जॉनरा टू जॉनरा, और आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन और एज आई से कि कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी से निकला हुआ बच्चा जो होता है उसको जितनी ज़रूरत होती है कनेक्शंस बनाने की, क्योंकि इफ ही वांट्स टू गो इनटू द इंडस्ट्री, then I think LinkedIn is one of the best platform to reach out to people to know कहाँ पे openings हैं, कहाँ NTO programs open हो रहे हैं, and so on and so forth. So what do you think? What's the main how much important is to have your LinkedIn optimized as far as your profession, and what about the engagement, everything? Right. So the first thing, I think you should really do is ask people for recommendations. ठीक है, if you're working somewhere, अगर आप यूनिवर्सिटी में भी हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, your teachers can recommend you, is your student you're studying, टीचर का भी तो अकाउंट होता है लिंक्डइन पे, everyone is using that, right? So there are a lot of professors who are having the LinkedIn accounts, they can recommend you, एक recommendation होती है, जरूरी नहीं है कि वो मैं specific job के लिए से करूँ, the student studies in my university in class and stuff, and you can recommend people like that. Then फिर उसके बाद आती हैं आपकी endorsements, ठीक है, कि आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है, ठीक है, एंड द अदर पर्सन इज रिकॉग्नाइजिंग यू फॉर दैट, ठीक है, सो दैट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट, एंड फिर मोर देन दैट, लाइक योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक एवरीवन शुड डू, कि आप अपना लिंक्डइन को वेरीफाई कराएं। तो लिंक्डइन को ये पता चलता है कि भाई द पर्सन इज ऑथेंटिक, राइट? सो इवन इफ यू डोंट हैव प्रीमियम, आपका चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोफाइल ज्यादा व्यूज में जाती है जस्ट बिकॉज इट्स वेरीफाइड, राइट? एंड देन ऑल्सो यू कैन पोस्ट, लाइक चलो कुछ लोग पोस्ट कर देते हैं, आप कुछ जैसे randomly just posting stuff, right? And they don't engage with people in the comment section. अब मैंने एक पोस्ट लगाई है, राइट, एंड लोग कमेंट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द टाइम आउट, दे आर एंगेजिंग बिकॉज उनका बेनिफिट है, राइट? Okay, बट दे आर डूइंग, और आपको भी perfect. बेनिफिट हो रहा है, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक, एग्री। इसी में मैं एक और पॉइंट, अभी आपने बोला था लिंक्डइन प्रीमियम का, ये सवाल I'm pretty much sure आपसे भी लोग पूछते होंगे कि यार इफ यू हैव अ लिंक्डइन प्रीमियम अकाउंट तो शायद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। डू यू थिंक लाइक दैट कि मेरा इसमें एक अलग सोच है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लिंक्डइन प्रीमियम से आपका हर चीज बदल सकती है। ठीक है, इट्स अबाउट योर पर्सनल हाउ यू आर यूजिंग इट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल जिसमें आप जरूरत नहीं है आपको लिंक्डइन की। तो लोगों को लगता है कि यार अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है तो कुछ अलग है। तो व्हाट्स योर थॉट ऑन इट कि अगर भाई लिंक्डइन प्रीमियम अकाउंट होता है तो आपको क्या जॉब ज्यादा मिल जाती हैं, या आपको लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर लेते हैं, या एंगेजमेंट बढ़ जाती है? नहीं, आई थिंक कि ये सिर्फ बातें हैं कि अगर आपको प्रीमियम इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप एक उस फील्ड से जहाँ पे आप यू नीड टू इंटरेक्ट विद पीपल, आपने अगर आप एक रिक्रूटर हैं एंड देन यूर हेड हंटिंग, ठीक है, आप एक बिजनेस है, यू नीड क्लाइंट्स, उस सिचुएशन में यू नीड प्रीमियम, ताकि आपके पास इन मेल्स आपको एक्सेस हो जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे ये काम नहीं करना, मुझे लोगों को इस तरह से रीच आउट नहीं करना, सो यू नो आई मीन मैं सिर्फ ये देख सकती हूँ कि मेरे पास कितने प्रोफाइल व्यूज हैं। सो देन ऑल्सो कुछ लर्निंग कोर्सेज हैं लिंक्डइन के जो यूजुअली फ्री आपको मिल जाते हैं,
बट व्हेन यू गेट द प्रीमियम, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें एक्सेस आप कर सकते हैं, काफ़ी कोर्सेज़ इस तरह के जो आप एक्सेस कर सकते हैं लिंक्डइन लर्निंग मतलब के थ्रू। what I have learned, I own a premium and I know के what are the perks and benefits, but मुझे ऐसा लगता है कि before you jump into the premium thing, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने शायद प्रीमियम के अलावा सारे पोटेंशियल पूरा कर लिया नहीं कर लिया, क्योंकि you can make your own profile very much well, और उसकी एंगेजमेंट भी अच्छी हो सकती है, उसकी ऑप्टिमाइज अगर आप करें, आप अगर कनेक्ट करें दूसरे लोगों से। आई गॉट योर पॉइंट, क्या ठीक है अगर हम कोई सेल्स के लिए क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं या एचआर को बहुत जरूरत है, क्योंकि इट्स obviously premium has some option, but you are agreeing on that point कि ये एक पॉइंट के बाद जरूरी होता है, उससे पहले you can do a lot of या, things without premium as well. Perfect. या। That comes to another thing. What do you think, Shireen, about career counseling? लाइक कैरियर काउंसलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लिंक्डइन या कि ये कहने कनेक्शंस बनाना या हाउ टू कनेक्ट विद पीपल इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट जब आपकी कैरियर काउंसलिंग हुई भी होती है कि ठीक है यार, अब आप इस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, और जब उसके बाद वो इंडस्ट्री में जाते हैं देन दे गेट टू दैट पॉइंट कि यार हमने ये कर तो लिया लेकिन इसकी क्या, मतलब इसकी अभी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि कुछ सालों पहले हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से चलूं तो हम तो लहर के हिसाब से चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शारीन ने बीबी कर लिया तो आधी दुनिया बीबीए करने लग जाएगी, फिर एसीसीए का चला तो एसी से कर लिया। सो व्हाट डू यू थिंक, इज लिंक्डइन शुड बी, और पर्सनल ब्रांडिंग और कनेक्शन बिल्डिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एज वेल, और देयर शुड बी सम कोर्सेज, या इससे हेल्प आउट हो सकता है स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे भी रीच आउट करते हैं, और आई एम प्रीटी मच श्योर आपको भी रीच आउट करते होंगे, क्योंकि they come on LinkedIn. They thought कि it's a social media platform like Facebook and Instagram, and they just like making their profile and then doing nothing. या। What's your suggestion on it? आई थिंक करियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें एक्चुअली ये नहीं पता कि हमें आगे करना क्या है। तो हमारे पेरेंट्स ने बोला भाई बीबीए करना है, क्योंकि सब कर रहे हैं अभी बीबीए। पहले बीकॉम करते थे सब, अब बीबीए कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग बीबीए। बस बीबीए कर भले, 4 ईयर बैचलर, दैट्स डन, वी डू यू डन विद इट, राइट? एंड उसके बाद क्या है, व्हाट, हमें क्या करना है, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ दैट आर जॉबलेस एट द मोमेंट, क्योंकि उनको वो चीज़ स्किल दे ही नहीं रही है। यूनिवर्सिटी में 4 साल आप स्पेंड करते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि आपने सीखा क्या है। आप बस पढ़ के आ रहे होते हैं। आपको ये ध्यान होता है कि आपने पेपर पास करना है, आपको डिग्री चाहिए। हमारे एक्चुअली ना सोसाइटी में ये बहुत गलत बात है कि जो आपके माइंडसेट में बच्चों की बिठाई जाती है कि भाई डिग्री कर लो एंड देन यू विल गेट अ जॉब। बट यू विल गेट अ जॉब Where? देन व्हाट? यू नॉट लर्निंग एनी स्किल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बताएं कि देखें, बात बहुत सिंपल है, हर इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी है। आपके अंदर एक अलग होगी, मेरे अंदर अलग होगी, ठीक है। एंड आई थिंक ऑल्सो दिस वन थिंग आई वाज थिंकिंग द अदर डे कि देयर शुड बी दिस स्पेसिफिक क्विज या इस तरह का टेस्ट होना चाहिए हर इंसान का एक स्पेसिफिक एज के बाद, ठीक है, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करें कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और उसके हिसाब से क्या जॉब उसको सूट करती है, राइट? अगर अब मेरी पर्सनैलिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि एचआर से बेहतर कोई ऑप्शन मेरे लिए नहीं होगा। सही सही और ये सही। ये चीज़ मैंने चूज़ नहीं की अपने लिए, ठीक है? ये चीज़ आई थिंक गॉड हैज़ चोज़न फॉर मी, राइट? एंड इफ यू आर फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड, आप उस तरफ होंगे, ठीक है? एक आपके अंदर वो स्पार्क होता है, तो तभी आप उस तरफ इंक्लाइन होते हैं। और जब तक आपके अंदर किसी चीज़ का पैशन नहीं होता, तो आप वो चीज़ में बोर हो जाते हैं। इफ यू आर नॉट लविंग व्हाट यू डू, तो आप बोर हो जाएँगे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक बंदा, एक स्टूडेंट क्या फ़ील करता है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो करना क्या चाहता है। एंड देन you can be creative in every field, you know, if you really want to go deeper into that or do something एग्री about it, yeah. एग्री एग्री ऑन दैट पॉइंट। और एक बहुत बड़ा मसला आजकल चल रहा होता है लोगों को पाकिस्तान में ज्यादातर, उनको लगता है कि एचआर जो है वो हायर नहीं करता। हम सीवी भेजते हैं, और आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस, अभी कुछ टाइम पहले ही व्हेन व्हेन वी हैव द मॉक कॉल, मैंने आपको बताया था कि हाउ दिस आइडिया जनरेटेड टू हैव दिस चिट चैट सेशन। तो मुझे तो उस वक्त के लिए, उस वक्त एचआर की बड़ी इज्जत बढ़ गई है मेरी नज़र में कि यार एचआर बहुत ही कोई क्रूशल काम है। यूजुअली लोगों को ये लगता है कि वो रीच आउट कर रहे होते हैं और वो सीवीज दे रहे होते हैं, वो रेज्यूमेस भेज रहे होते हैं, वो पोर्टफोलियोज भेज रहे होते हैं, और एचआर रीच आउट क्यों नहीं करता। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम एचआर पॉइंट ऑफ व्यू कि एचआर हायरिंग के वक्त क्या क्या चीजें देखता है, नंबर वन। नंबर सेकंड, व्हाट आर द की फीचर्स दैट यू थिंक यार ये एक बैचलर्स के स्टूडेंट को ये गलतियां तो एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आई आई एम प्रीटी मच श्योर कि द जितनी क्वांटिटी में आप लोग के पास रेज्यूमेज आते होंगे फॉर एनी ओपनिंग, उसको आप किस तरीके से सेटल डाउन करते हो कि यार हमारे हमने क्या प्रायोरिटी रखी है, और क्या आप सजेस्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स को कि यार ये चीजें तो आपने बहुत मैटर करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद आपसे बात करूं, बहुत मर्तबा लोग ईमेल करते हैं और वो ईमेल का कंटेंट जो है ना वो हेडिंग में लिख देते हैं। और बहुत मर्तबा लोग होते Yeah. हैं कि माशाल्लाह से वो सिर्फ ये करते हैं, हाय दिस इज माई सीवी हैव अ लुक। और बहुत सारे लोग होते हैं वो तो शायद हाय भी नहीं लिखते, वो सिर्फ सीवी दे देते हैं और उनको लगता है कि सामने वाला बंदा खुद देखे। तो एचआर का अगर पर्सपेक्टिव देखें, क्योंकि हमारा ब्लेम गेम बड़ा स्ट्रांग है ना पाकिस्तानियों को, हम ब्लेम कर देते हैं एचआर को अगर गवर्नमेंट को नहीं कर रहे। तो अगर मैं एचआर से पूछूं कि एचआर क्या क्या परेशानियों से गुजरता है एक हायरिंग के वक्त, और क्या क्या चीजें जिस जो हेल्प आउट कर सकती हैं एचआर को भी और हेल्प आउट कर सकती हैं किसी भी इंसान को एक जॉब को एस करने के लिए या सिक्योर करने के लिए, व्हाट आर द थिंग्स? So the first thing that comes up is the resume. A lot of people don't know how to make resumes. बिल्कुल नहीं पता इनको कैसे बनाते हैं resume. ठीक है, अ, अपनी पिक्चर लगा देंगे बहुत बड़ी सी, ठीक है, अपना पूरी डिटेल दे देंगे, ठीक है, और उनकी प्रोफेशनल डिटेल, उनकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा उनको नहीं पता। एक रिक्रूटर जब एक रेज्यूमे को देख रहा होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें नोट करता है। उस इंसान के बारे में पता चल जाता है कि उसने रेज्यूमे खुद बनाई है या किस दिल से बनाई है, क्या किया उसने उसके साथ, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी का 2 मिनट में पता चल जाता है उसी, क्योंकि आई मीन आई हैव टू जज, आई नीड टू शॉर्टलिस्ट पीपल, मुझे जज करना है उस पेपर से, ठीक है? उस डॉक्यूमेंट से मुझे जज करना है कि एक बंदा क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या हैं, ठीक है? अदर थिंग इज़ कि यू नो एक होता है आप मैन्युअली रेज़्यूमेस कलेक्ट कर रहे हैं। आपके पास एक पोज़ीशन खुली, आप मैन्युअली आपने ईमेल दी, मैन्युअली कलेक्टिंग इट। देन यू हैव गॉट द पोर्टल। मेरी अगर बहुत बड़ी कंपनी है और मुझे पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव टॉक अबाउट यूनिलीवर, अ लॉट ऑफ रेज़्यूमेस, आई विल गेट अ लॉट ऑफ रेज़्यूमेस, ठीक है? जितनी बड़ी कंपनी, उतने ज़्यादा रेज़्यूमेस, ठीक है? एंड आई हैव अ पोर्टल फॉर दैट। नाउ मुझे एक सिस्टम लगाना पड़ेगा एटीएस, ठीक है? तो वो सिस्टम क्या करता है, अब ज़ाहिर-सी बात है मेरे सॉरी पास टू कट यू ऑफ 3000। सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं बस इसमें इस वक्त चाहूंगा कि a lot of people know about ATS, but can you please a bit specific कि ATS बेसिकली है क्या? क्योंकि लोगों को ये मिथ तो पता है कि हाँ भाई हाँ ठीक है ATS कोई चीज है, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा डिफाइन जरूर करिएगा शानी। या एटीएस इज बेसिकली सिस्टम जो आपका रेज्यूमे को स्कैन करेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने जॉब पोस्ट किया, आपने उसको ये बता दिया कि भाई दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ठीक है, मतलब लोकेशन के वाइज यू गॉट अ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो आपके रेज्यूमे को स्कैन करेगा, ठीक है, उसमें से वो चीज़ें निकालेगा कि वो सिर्फ ये देख लेगा कि जो जो चीज़ें इस कंपनी को चाहिए या इस जॉब पोजीशन में वो उसमें इंक्लूडेड हैं, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कीवर्ड्स। लाइक अगर मैं अपनी जॉब पोस्ट में स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करती हूँ कि मुझे ये स्किल सेट चाहिए उस इंसान के अंदर, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी लोकेशन ये होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट, तो वो चीज़ें स्कैन करके और वो मुझे मेरे पास वही आएँगी स्कैन होके। मेरे पास जो बाकी रेज़्यूमेज़ जिनमें वो चीज़ें नहीं लिखी हैं, वो मेरे पास नहीं आएँगी। सो इट्स लाइक अ हेल्पफुल सिस्टम। जब आपके पास 3000 4000 रेज़्यूमेज़ होती हैं, तो उसमें से कट-कट के यू गॉट लाइक 300 400, इट डिपेंड्स, कि कितनी आपके पास आ रही होती हैं। देन फिर आप उसमें से आप रीड करते हैं एंड देन आप उसको फिर यू इंटरव्यू पीपल एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स जस्ट अ सिस्टम दैट हेल्प्स। एंड व्हाट अबाउट कि उसके बाद जब फिल्टर आउट हो जाती हैं, देन व्हाट आर द की फीचर्स, व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट एचआर इज लुकिंग फॉर? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं मुझे जितना जो मुझे ऐसा मेरा जितना एक्सपीरियंस, आई एम नॉट इनटू एचआर बट आई वांट टू नो द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एचआर। क्योंकि एचआर सिर्फ शायद एक डिग्री का बंदा हायर नहीं कर रहा होता, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटीज दैट यू आर लुकिंग फॉर, द लीडरशिप क्वालिटीज, द एक्सपीरियंस, द पोर्टफोलियो। सो वो उसका क्या प्रोसेस होता है जब जैसे अगर सॉर्ट आउट हो जाती है, तो फिर एचआर किस तरीके से उसको देख रहा होता है ताकि लोगों को पता चले कि भाई ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसा भी बताया कि बड़ी पिक्चर लगाना इज नॉट द बिगर थिंग, अबाउट सेक्शन में कोई ऑफ टॉपिक चीजें लिख देना इज अ बिगर थिंग। बट व्हाट डू यू थिंक इज द राइट वे कि यार आपको ये चीजों को पॉइंटर्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 पॉइंटर्स क्या होंगे या 3 पॉइंटर्स क्या होंगे, तो वो क्या पॉइंटर्स होंगे जो आप कहती हैं कि यू शुड हैव दीज थिंग्स इन योर रिज्यूमे? एक्चुअली दिस वन थिंग, हर जॉब के लिए हम अलग से देख रहे होते हैं रेज्यूमेस को। तो आई कैन नॉट टेल कि यार व्हाट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो क्या चीज़ें चाह रहे हैं,
ठीक है? कुछ कंपनीज़ ये देख रही होती हैं कि वो आपकी सोली आपके एजुकेशन पे पॉइंट आउट कर रही होती हैं कि भाई मुझे तो इसी यूनिवर्सिटी का बंदा चाहिए। With this much of experience, right? Some companies are not considering that. They want experience in specific things. ठीक है, तो वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। मतलब मुझे एक सेल्स का बंदा चाहिए जिसने जो ई कॉमर्स वाली साइट पे हो, फॉर एग्जांपल उसने शॉपिफाई वगैरह को डील किया हुआ हो। अब ये चीज़ें दे आर हार्ड टू फाइंड बिकॉज नॉट एवरीवन इन पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन शॉपिफाई और अमेजॉन ई कॉमर्स। यहाँ पे इस तरह की प्रोफाइल्स बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, फिर हमें ये भी देखना होता है कि हमें किसकी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा मेल काम कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस करने के लिए यू आल्सो लुकिंग फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, तो उसमें भी होता है। तो द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि लोग बहुत देखे बगैर जॉब्स पे अप्लाई करते हैं। दिस वन रीज़न कि वो जॉब पोस्ट पढ़े बगैर अप्लाई करते हैं, तो फिर वो देन दे कंप्लेन। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक सेल्स का बंदा वो इंजीनियर की पोस्ट पे वो कर रहा है एंड आई नीड अ जॉब। यू नीड टू सी, ठीक है, आपको पता है आपको पढ़ने लिखने की सलाहियत है, इसीलिए आपने सब कुछ किया है ना। यूर यूजिंग योर फोन, यूर यूजिंग योर गैजेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। यू नीड टू सी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें तो सही कि जॉब उसमें लिखा हुआ क्या है। आपके पास वो चीजें नहीं है, सो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि हम आपकी रेज्यूमे को वी जस्ट कॉल यू अप फॉर दैट, राइट? आप राइट प्लेस, आप अपनी एनर्जी बचाएं ना, आप सही से पढ़ें उसको, आप राइट प्लेस पे जगह पे अप्लाई करें, सही से अप्लाई करें, ठीक है? एंड I दैट can vouch for it क्योंकि I recently posted for an opening in Dubai. I think 99% पाकिस्तानियों से ये पढ़ा कि हायरिंग फॉर यूएई। उसके बाद क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब का टाइटल हर जगह डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट मैनेजमेंट, एजेंसी में अकाउंट मैनेजर्स हैं, ब्रांड पे ब्रांड मैनेजर्स हैं, बट शायद दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। या दिस इज ट्रूली वन थिंग कि लोगों को अप्लाई करते वक्त अंधों की तरह अप्लाई नहीं करना चाहिए। यू शुड हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, आर यू अ गुड फिट फॉर दिस पोजिशन, एंड ऑल्सो योर रेज्यूमे शुड लुक लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी सीवी जो है बहुत ही रंग वाली बनी हुई है, इट्स नॉट अ एटीएस फ्रेंडली और अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हाँ ठीक है, हो सकता है एजेंसीज में शायद वो उसको उस तरीके से क्रिएटिवली अप्रोच करें। बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर पीपल रिलेटेड टू अकाउंट्स या जो भी दूसरी रिलेटेड फील्ड्स हैं, उसमें आपकी सीवी को भी उस हिसाब से होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लोग एक ही सीवी बनाते हैं और फिर उसको हर जगह डाल देते हैं, लाइक जहाँ ओपनिंग आ जाए, एजेंसी हो, ब्रांड हो, कोई छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, एमएनसी हो, या कुछ भी हो। तो दैट आई एम टोटली एग्री एंड आई टोटली गेट योर पॉइंट कि ये तो एक मसला है। सो उसके बाद अगर मैं देखूं कि डू यू थिंक कीवर्ड्स प्ले मेन रोल इन द हायरिंग पार्ट? क्योंकि you can use keywords in your LinkedIn, you can use keywords in your resume as well, and that's also help you to हैव एटीएस चेक को क्रॉस करने के लिए, या अगर आप लिंक्डइन पे क्रॉस कर रहे हैं, लिंक्डइन पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में लिंक्डइन इज ऑल्सो योर ऑन गोइंग रेज्यूमे। क्योंकि अगर कोई बंदा सेलेक्ट करता है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि एचआर भी देखता ही होगा कि लिंक्डइन पे बेसिकली उसकी प्रोफाइल कैसी है, वेयर इज वर्किंग। सो व्हाट डू यू थिंक, ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपको कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है? राइट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर एक रिक्रूटर हेडहंट कर रहा है, अगर मेरे पास मुझे एक स्पेसिफिक लेवल का बंदा चाहिए, परफेक्ट। ठीक है, तो मैं वो कीवर्ड टाइप करूँगी। और वो कीवर्ड जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर, राइट? आई एम गोइंग टू, अब मुझे हायर तो क्रिएटिव डायरेक्टर करना है, बट ऑब्वियसली मैं उसको एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर के लेवल से उठा के अपनी कंपनी में जब लेकर आऊंगी, तो आई बी ऑफरिंग हिम अ पोजीशन ऑफ क्रिएटिव डायरेक्टर, बिकॉज जाहिर सी बात है वो एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर पे नहीं आएगा, राइट? एग्री। एंड दो आई एम गोइंग टू राइट दैट स्पेसिफिक टाइटल, ठीक है, वो मैं लिंक्डइन पे लिखूंगी और उसके रिलेटेड तमाम प्रोफाइल्स मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है, एंड देन आई विल व्यू दोज प्रोफाइल्स, ठीक है। अच्छा, फिर लॉट ऑफ पीपल हैव दे हैव मेंशन्ड एसीडी या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ उन्होंने एक डेजिग्नेशन मेंशन की होगी, लेकिन उनकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट होगी, ठीक है। एक ये भी बहुत बड़ा इशू है, तो आपको उसको भी देखना पड़ता है। बट जो भी आपकी फील्ड है, ठीक है, आपकी जो मेजर्स हैं, आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है, अगर आप यू वांट टू बी सीन,
तो आप वो चीज़ ज़रूर मेंशन करें, अपनी लोकेशन को क्लियर रखें, ताकि जिस लोकेशन पे आप चाहते हैं कि आप रिक्रूटर आपको अप्रोच करे फॉर अ जॉब, तो वो आप उस लोकेशन पे रहें, ठीक है? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द कीवर्ड्स, ठीक है? आप अलग-अलग कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और ऐसे कीवर्ड्स ना यूज़ करें जो आप करते ही नहीं हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ठीक है? जो आपकी डेज़िग्नेशन कम्स फर्स्ट, वेयर आर यू वर्किंग, ठीक एग्री। है? लाइक आपकी डेज़िग्नेशन, वेयर आर यू वर्किंग एंड देन थिंग्स दैट यू हैव पावर ऑन, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप किसी स्पेसिफिक फ़ील्ड के अंदर, ज़ाहिर-सी बात है, एक फ़ील्ड होती है, वास्ट होती है, ठीक है? उसमें कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एक इंसान देख रहा होता है स्पेसिफिकली, ठीक है? अगर मैं प्रोग्रामर्स की बात करूँ तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते होंगे, वो स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड रखते होंगे, 2-3 ही होती होंगी वो, ठीक है? तो आप उसमें स्पेशलाइज़ कर रहे हैं ना, तो जिसमें आप स्पेशलाइज़ करें इंक्लूड दैट इन। तो अगर एक रिक्रूटर आएगा, उसने अब लिखना है कि यार फलाँ-वरना, चलो डेज़िग्नेशन नहीं लिख रहा वो। अब व्हेन इट कम्स टू टेक फील्ड्स, तो वो दे लूकिंग फॉर पीपल जहाँ पे उनको फलाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो। तो मैं लिखूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल I'll just write .NET developer something like that, ठीक है? और फिर मैं देखूँगी कि यार कौन-कौन नहीं कर रहा है, किस-किस की प्रोफ़ाइल में ये है, कौन एक .NET डेवलपर है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन always, fix things and play with it. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू थिंक कि अभी हम बात कर रहे थे ऑप्टिमाइजेशन की, फिर एसईओ हाँ, हाँ। कीवर्ड्स की। उसका सबसे मेन बड़ा जो सेक्शन आता है वो आता है अबाउट सेक्शन। About section, और yeah. बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने वन लाइनर्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो हाँ, क्या वो मतलब उसको उसको कैसे लिखना चाहिए? ऑल्सो एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर लोग बस अपनी डेजिग्नेशन और ये लिख देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक काम करे। उसके अंदर एक पूरा प्रोसेस है क्या? उसके अंदर अपनी जेडी के अंदर जेडी के अंदर अभी क्या क्या डिटेल्स हैं? यू कैन ऐड योर पोर्टफोलियोज, यू कैन ऐड योर अचीवमेंट एज वेल, सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? अच्छा, अबाउट सेक्शन में ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बताएं कि आपने अचीव क्या किया, आप कौन है, ठीक है? नॉट कि भाई आई एम वर्किंग हियर, आई एम डूइंग दिस। हमें पता है, आपने लिखा हुआ है, आपने डेजिग्नेशन लिखी हुई है, वी नो दैट यू आर फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड। नाउ व्हाट अबाउट यू? एंड इट्स बेसिकली अ समरी ऑफ योर entire experience, so treat it as a summary. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब आप एक्सपीरियंसेस एक रेज्यूमे में अपने डाल रहे होते हैं, तो आपने, ठीक है, आप अपनी जॉब ड्यूटीज़ डाल रहे हैं, बट आई थिंक एक रिक्रूटर को ये पढ़ के ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपने अचीव क्या किया थ्रू आउट। आपने क्या कंपनी को दिलाया क्या? आपने अपने डेज़िग्नेशन पे काम करते हुए, उस जितने भी टेन्योर में आपने काम किया है, व्हाट यू हैव अचीव्ड, व्हाट यू थिंक दैट यू हैव अचीव्ड, और कंपनी ने उसमें क्या अचीव किया। ठीक है? मतलब मुझे पता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक फ़ील्ड से हैं, तो आप क्रिएटिव एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, यू फ्रॉम क्रिएटिव फ़ील्ड, तो मुझे पता है कि आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट, ठीक है? तो वो तो कोई भी कॉपी करके चैटजीपीटी से डाल देगा कि भाई मेरी ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बट व्हाट यू हैव अचीव्ड, ठीक है? सो यू शुड इंक्लूड दैट, लाइक आपका रिज़्यूमे ऐसा होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे सामने बैठे हुए हैं एंड आई एम लिसनिंग टू यू, इन अदर वर्ड्स, ठीक है? एंड आई थिंक दैट्स, अगेन आई विल से कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पीस ऑफ डॉक्यूमेंट को कैसे इतना एनहांस करते हैं कि वो, यू नो इट रीचेस आउट। A lot of people have, come across there like कि नहीं, एक इंटरव्यूअर नहीं डिसाइड करता है, या एक रेज्यूमे पेपर नहीं डिसाइड कर सकता कि यू आर गेटिंग अ जॉब और नॉट। Fair enough, but again, you cannot be like that, ठीक है? You have to use some strategies, you have to use some senses. एग्जैक्टली। It's not like that कि आप उस चीज़ पे काम ही ना करें and you're like ठीक है, नहीं भई अल्लाह के हवाले, मैंने तो मतलब मिलना होगा तो मिलेगा। No, you have to try hard for it, you know? एग्री। मैं And मेरा इसमें yeah. छोटा सा एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान की बात ना भी करूँ, या मैं यूएई में हूँ तो मैं यूएई की बात कर लूँ, कहीं की बात करूँ, सो बेसिकली यू आर कम्पीटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो आई थिंक अगर आप अपने रेज्यूमे या अपने लिंक्डइन के अंदर कोई भी वो स्टेप मिस करते हैं और अगर किसी और के पास वो स्टेप है तो उसके पास ज्यादा चांसेस है। एंड हुँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट समथिंग लाइक कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि वो आपको एक महीने के पैसे देते हैं और बस उतनी ही मेहनत करनी है। तो अगर आपको उससे पैसे कमाते हैं, आप, इट्स योर ब्रेड एंड बटर, तो आई थिंक उस पर मेहनत करनी चाहिए। एग्री ऑन दैट पॉइंट। अभी आपने एक चीज मेंशन करी शारी, चैट जीपीटी। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसको सही से यूज करें, सो यू कैन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप कैसे लिखेंगे या कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू कैन हेल्प
help the AI tools like chat GPT. You can go to different profiles and then review those profiles कि उन्होंने कैसे लिखा है. What do you think कि chat GPT की मदद से आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? Like only chat GPT नहीं, AI tools बहुत सारे जितने भी हैं. You have, do you think that this is something important everyone should know about it and everyone should use it? यार एक्चुअली चैट जीपीटी को यूज करना बहुत सारे लोगों को नहीं आता। मैं अगर उसको नॉर्मल लिंक्डइन पे भी देखूँ ना तो लॉट ऑफ पीपल जस्ट देयर लाइक आई फील पोस्ट पढ़ के ये लगता है कि उन्होंने ये इसको लिंक्डइन को सिर्फ इतना सा बोला है कि भाई आप मुझे कोई भी पोस्ट लिख दें, मैं उसको अपन पोस्ट कर मैं दूंगा। मैं मंडे को ठीक है, पोस्ट करने वाला हूँ, कॉपी आप मंडे की पोस्ट लिख दें. पेस्ट कॉपी पेस्टिंग इट, लाइक इट फील्स कि आपने उसमें मेहनत नहीं की। इट फील्स दैट आपने कॉपी पेस्ट करके वो लिंक्डइन पे छाप दिया एंड देन यू नो जस्ट बिकॉज एक काम है आपको, एक काम सर से उतारा आपने। आपने लिंक्डइन पे गए, आपने सॉरी चैट जीपीटी पे गए, आपने एक पोस्ट को बोला भाई कोई भी मुझे लिंक्डइन की पोस्ट बना दो एंड देन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नो, आपके काम में आपका पर्सनल टच जब तक होगा नहीं, किसी भी चीज़ में आपका पर्सनल टच नहीं होगा, को मज़ा खुद नहीं आएगा और किसी और अगले बंदे को भी देख के पता चल जाएगा, तो ऑटोमैटिकली दैट पर्सन विल नॉट बी इंक्लाइंड टू लाइक इट। ठीक है? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, ठीक है? आप मदद हर चीज़ की ले सकते हैं, मैं खुद चैटजीपीटी की मदद लेती हूँ, लेकिन मैं उस पे बेस नहीं करती हूँ, राइट? आई जस्ट नीड अ बिट ऑफ हेल्प कि यार इसको थोड़ा स्ट्रक्चर कर दो। देयर आर टाइम्स जब आपको नहीं दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, देन यू लाइक हाँ, बट मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा रोबोटिक हो जाता है, सो इट्स मी, आई विल बी लाइक ठीक है तुमने दे दिया, नाउ आई विल बी रिफ्रेजिंग इट, करेक्टिंग इट ऑन माय ओन, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट एंड इट्स वेरी No, इंपॉर्टेंट, स्पेशली देयर इज वन थिंग दैट आई हैव आल्सो नोटिस कि जब आप कोई चीज़ एक अपना पर्सनल टच किसी चीज़ में देते हैं ना, अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप रेज़्यूमे की बात कर लें, आप कोई लिंक्डइन पे पोस्ट लगा रहे हैं, आप उसकी बात कर लें, आपके जो दिमाग में मैं हर हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको ना रिलेटेबल साउंड करना पड़ता है, ठीक है? आपके जो दिमाग में अगर आप वो पुट आउट करेंगे ना, लॉट ऑफ पीपल विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट नेचुरली, ऑटोमैटिकली, आई डोंट नो व्हाई बट इट्स द फैक्ट, राइट? रादर देन जस्ट पोस्टिंग इट सो रोबोटिकली कि लोग उठा के वो उनको रीड भी ना करना पड़े, वो कर क्योंकि ही ना काफी पाएँ। क्योंकि काफी लोगों को पता चल ही जाता है. अब हमारा मसला ये है कि हम या तो चीज यूज नहीं करते, और अगर करते हैं तो उसका इतना एक्सेसिव यूज करते हैं कि Yeah. अपेरेंटली आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पोस्ट मेरी फीड पर आ रही होती हैं, तो उसमें ऐसे वर्ड्स यूज हुए होते हैं कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि Yeah. उसके लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी आपको कि यार ये क्या वर्ड यूज किए मैं. अपेरेंटली उनकी प्रोफाइल उसको बिल्कुल लाइन अप नहीं कर रही होती है. अ, उसके बाद आ जाता है कॉमनली मिस्टेक्स की बात अगर करें. ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि असल में एचआर के जितने सेशंस मैं करना चाह रहा हूँ उसमें बहुत ज़रूरी है जानना कि एचआर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. क्योंकि हमेशा हम लोगों को लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, और एचआर के बस शायद सिर्फ एक काम है कि यार हम बस मैंगो डे और XYZ डे करते हैं, और हम पिकनिक पे ले जाएं या हम पोस्टिंग कर दें, और कोई भी एक्स मतलब ऑल्सो दीज आर ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट व्हाट डू यू थिंक यार, ये एक एचआर की जॉब में क्या क्या चीजें आती हैं ताकि लोगों को थोड़ा पता चल जाए कि एचआर इज नॉट ओनली फॉर हायरिंग. लाइक टैलेंट एक्विजिशन का काम क्या होता है, ऑल्सो कॉमन मिस्टेक्स क्या आप, अगर मैं पांच या दो या तीन कॉमन मिस्टेक्स बोलूं ओवरऑल, नॉट ओनली ऑन लिंक्डइन या नॉट ओनली ऑन रेज्यूमेज, ओवरऑल अगर अपने एक्सपीरियंस में मैं शारीन से पूछूं कि यार क्या कॉमनली मिस्टेक्स लोग जो कर रहे हैं जो उसको देख के बंदा बोलता है कि प्लीज ये अब ना करें तो बेहतर है. हुँ, राइट। सो अच्छा, जहाँ तक बात आती है ना एचआर की, तो दैट्स अ फैक्ट, देयर लाइक हायरिंग फायरिंग ही करते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों को अपने मैंने अपनी फैमिली में भी बात की, कब मैं उनको बताती हूँ कि नहीं आई एम फ्रॉम एचआर, सो लाइक हायरिंग करती हो, फायर करती हो लोग? नहीं। मतलब ये नो। काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक That's all रिस्पॉन्सिबिलिटी they है. know. That's all they know, right? It's not like that. I mean, एचआर जो होता है, it's like a pillar of a company. ठीक है, जो एक सीईओ के साथ बैठता है, there's like एक होता है आपका ट्रेडिशनल एचआर एंड आपका आता है स्ट्रेटेजिक एचआर. सो व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक एचआर, वो आपकी कंपनी को बिल्ड कर रहा होता है, वो आप प्रिडिक्ट करता है कि 5 साल बाद इस कंपनी ने कैसे, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी साइज, फर्स्टली, ठीक है? अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो उसका 5 साल में किस तरह के लोग आएँगे, ठीक है? नेक्स्ट जनरेशन किस तरह की है, किस तरह के लोगों का माइंडसेट क्या होगा, आगे आने वाले 10 सालों में क्या होगा, उस हिसाब से आई एम गोना अलाइन स्टफ, राइट? ठीक है? उसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है।
कि ऐसे क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए जो एम्प्लॉयी एंगेजमेंट को बूस्ट करें, ठीक है? एम्प्लॉयी एंगेजमेंट क्यों ज़रूरी है? एम्प्लॉयी को सैटिस्फाई करना क्यों ज़रूरी है? ठीक है? उनकी मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है? ठीक है? So there's a lot. It's not hiring firing. There's a lot that I can't tell because बहुत ज़्यादा वो लंबा हो जाएगा. But yeah, it has to do with learning and development कि हमारा एम्प्लॉय जो एक आता है उसको हमने मुसलसल अपग्रेड करना है। बड़ी कंपनीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं होती, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने एम्प्लॉय को अपग्रेड कैसे करना है। उनको आप सेशंस दिलवाते हैं, ठीक है? आप खुद भी सेशंस अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? एंड ऑल ऑफ दैट कि आप एक एम्प्लॉय की तो उसको अपग्रेड कर ही रहे हैं, बट अपनी कंपनी को बेनिफिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक बंदा हायर किया फॉर अ जूनियर लेवल, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एंड इफ ही यू नो अगर उस जूनियर लेवल बंदा मैंने हायर किया है और मैं उस पे काम करती हूँ, मैं उसको उसको ही इज़ वर्किंग विद मी, अब वो सीख रहा है, मैं उसको अपग्रेड करती रहती हूँ ईयर बाय ईयर, उसकी प्रमोशन हो रही है, उसको मैं लर्निंग डेवलपमेंट के चांसेस दे रही हूँ, ठीक है? उसको मैं किसी ट्रेनिंग के लिए भेज रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। आई क्योंकि वो मेरी कंपनी में बहुत पहले से काम कर रहा है, आई वुड प्रेफर कि वो मैनेजर लेवल पे जाए और समडे वो एक सीईओ बन जाए, एक डायरेक्टर लेवल पे चला जाए, रादर देन हायरिंग अ डायरेक्टर जो बिल्कुल ही कहीं और से या किसी और कंपनी से आ रहा है, क्योंकि उस बंदे को पता है ना कि मेरी कंपनी को उसने स्टार्टिंग से देखा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कंपनीज ये करती हैं एंड ये बहुत मैटर करता है कि आप एक एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करते हैं, व्हाट आर योर रिटेनिंग स्ट्रेटजीज, बिकॉज सम ऑफ द कंपनीज, आई थिंक आई वर्क विद अ कंपनी जिसको जिसका जिसका मैंने कहा कि भाई आप रिटेन, you have, I need to retain the employee, so they were like, no, we'll go step by step because how they didn't believe in retaining the employee, ठीक इससे है? बड़ा एक इससे बड़ा बड़ा मेरे दिमाग में एक अच्छा सवाल आया है कि व्हाट डू यू थिंक इज द राइट टाइम टू स्विच एंड हाउ ऑफन यू शुड स्विच। मैंने ये देखा है कि मतलब मैंने ये देखा है कि या तो लोग इतनी तेजी से स्विच कर रहे होते हैं कि हर 6-6 महीने में स्विच कर रहे होते हैं। मैंने हाँ, बहुत लोगों को देखा है जो शायद 5-5 10-10 साल से काम कर रहे हैं। बट एज एन एचआर पॉइंट ऑफ व्यू ग्रोथ को अगर देखा जाए व्हाट इज द राइट टाइम टू स्विच एंड व्हाट्स द पॉइंटर्स जो आपको दिमाग में होने चाहिए। अच्छा अगर ये चीजें हैं तो फिर मैं स्विच करता हूँ या मैं करती हूँ। ठीक है। डज दैट इफेक्ट योर रेज्यूमे इफ यू आर स्विचिंग अ लॉट और नॉट। इट डज़, ठीक है। स्विच तो एक्चुअली दैट डिपेंड्स व्हाई आर यू स्विचिंग, व्हाई एन एम्प्लॉयी स्विच, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसी का शौक नहीं होता कि वो बैठ के स्विच करे, एंड आई वुड नॉट प्रेफर एनीवन टू जस्ट कीप स्विचिंग, ठीक है। देयर आर ऑलवेज रीजंस व्हाई अ पर्सन स्विचेस, राइट? तो पहली बात तो ये है कि आपने, अगर आपकी कंपनी, इफ यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है, और आपकी कांस्टेंट लर्निंग हो रही है, आप स्टैग्नेंट नहीं हो रहे, आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एंड आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स पे काम करने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ आपकी प्रमोशन हो रही है, आपकी हर चीज़ सेटल्ड है, तो I think that just give it for like 5-6 years, maybe 7 years, maybe 10 years. But I think जिस तरह का अब environment है, a lot of people want to work on their own businesses. हर किसी को जिस तरह की हमारी जनरेशन अब चल रही है उसको कि जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी है उसको अपना सेटअप खोलना है, and I think that's a very good thing. तो I think spending time in a company for maximum type of years, अगर वो कंपनी अच्छी है, ठीक है, तो आप बिल्कुल करें। और ऑफ़न टाइम्स ये होता है कि कंपनीज़, जो छोटी कंपनीज़ होती हैं, लाइक मिड साइज़ होती हैं या स्टार्टअप्स होते हैं, उनके पास कुछ चीज़ें प्रोसेस ही नहीं हो रही होती। तो इट्स जस्ट लाइक यू आर वर्किंग एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। आपने एक्स्ट्रा वर्क करना है, आपको पैसे मिल रहे हैं, दैट्स ऑल। तो आपकी एक जगह पे आके आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको नहीं समझ आ रहा होता, एंड देन उन जगहों का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक भी हो जाता है, एंड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज लीव बिकॉज ऑफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, एंड दिस इज अ वेरी बिग इशू कि कल्चर किस तरह का होना चाहिए, एनवायरनमेंट किस तरह का। आज से एक 10 साल 15 साल पहले जब मिलेनियल्स की मैं बात करूं, तो उनका ये था कि यार हमने बीकॉम कर लिया, अब हमें एक जॉब मिल जाएगी और हम उस पे पूरा साल, मतलब पूरी ज़िंदगी, नौकरी लग गई है, जॉब पूरी ज़िंदगी हम उस पे गुज़ार देंगे। नाउ वी हैव टू गेट मैरिड एंड हैव अ फैमिली, वो नौकरी लग गई, भई गवर्नमेंट की नौकरी लग गई, बस नौकरी लग गई। अब ऐसा माइंडसेट नहीं है। इट्स लाइक दे प्रायोरिटाइज़ मेंटल हेल्थ मोर, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज़ योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर आप यहाँ से सही नहीं हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। दैट्स, आई हैव बीन थ्रू दिस। तो अपने आप को फ़ोर्स करके फ़ायदा नहीं है।
Yeah. Perfect. Let me see what other topics do I have to get some crispy knowledge from you. हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं। मैं एक बस ये चीज थी कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि इससे काफी लोगों ने ये चीजें देखी होंगी कि एक एचआर पर्सपेक्टिव क्या है। मैं बस ये चाहूंगा कि शहरीन शारीन आप एंड में ना मुझे ये जरूर बताएं कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, ताकि उनको ना थोड़ा सा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट निकल रहे हैं दे आर जस्ट गेटिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड नथिंग एल्स। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कर रही हैं उसकी ग्रोथ प्लान के लिए, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास जॉब ओपनिंग्स कम है और हमारे पास स्टूडेंट की ग्रेजुएशन की क्वांटिटी ज्यादा है। तो what are the things that students should do to up the ball game, like अपना अपने गेम में थोड़ा सा बेहतर करें? This is the last thing that I have in mind right now. आई थिंक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप ये इंतज़ार ना करें कि 4 साल बाद जब आपकी डिग्री ख़त्म होगी तो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, बिकॉज़ 4 साल में यूनिवर्सिटी में आपको कुछ एक्चुअली जो आप सीखते हैं वो आप कॉर्पोरेट लाइफ में आके सीखते हैं। यूनिवर्सिटी में आप कुछ भी नहीं सीखते हैं, टू बी ऑनेस्ट। इट्स जस्ट आप ये सीखते हैं कि लोग हैं, आपने लोगों में उठना बैठना है, आप पढ़ रहे हैं, एंड देन आप थोड़ा सोशलाइज़ कर पाते हैं। आप अगर इंट्रोवर्ट है, थोड़ा-सा आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएँगे, आप थोड़ा लोगों में उठना बैठना सीख सकते हैं। बट जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिखाता है इट्स कंप्लीटली डिफरेंट जो आपको यूनिवर्सिटी सिखाती है किसी भी लेवल के ऊपर, किसी भी फील्ड में। ठीक है, अगर मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो मैं जब उसको फिज़िकली परफ़ॉर्म करने पे आऊँगी, बहुत डिफरेंट है। इट्स वेरी डिफरेंट, राइट? हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत ट्रेंड बना है कि भी 4 साल आपने पढ़ना है, उसके बाद फिर जाके हम इंटर्नशिप करेंगे एंड देन ऑल ऑफ दैट, व्हिच इज़ नॉट अ राइट थिंग फॉर मी। ठीक है, कुछ ना कुछ आप करें, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर बाय द टाइम यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी यू नो, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस भी होता है। तो आपको कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं जॉब मिल ही जाती है। मतलब लगे ठीक रहना है? चाहिए, छोड़ना नहीं और चाहिए। हाँ, एंड ऑल्सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें। लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट, डोंट दे डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है, वो पूरा साल पढ़ लेते हैं और कुछ भी मतलब उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती, उनको नहीं पता था कि आप आगे सामने वाले बंदे से बात कैसे करनी है। ठीक है, एंड देन ऑल्सो आई थिंक मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ किए हैं जिसमें लोगों को ये नहीं पता, लाइक उनके पास स्किल सेट है, ठीक है? बट उनको ये नहीं पता कि वो बैठना कैसे है एक इंटरव्यू के सामने और बात कैसे करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक पर्सनली दैट्स समथिंग दैट मैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट करती हूँ, और एक मतलब एंड इट टेल्स अ लॉट अबाउट यू, राइट? तो एक बार मेरे साथ हुआ भी था ये कि आई वाज़ सिटिंग इन एन इंटरव्यू एंड आई वाज़ लाइक, एंड द गाय वाज़ सिटिंग वेरी weirdly, and then with the way he was talking, he was very skilled in this field, but didn't like the way he was sitting, and I was like, no, I mean, I can understand that. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात बिल्कुल इससे रिलेटेबल इसलिए क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एचआर हायरिंग मैनेजर जो भी होते हैं वो भी इंसान ही होता है, ठीक है। एंड यू नीड टू इवैल्यूएट अ पर्सन इनटू लाइक 10 15 20 minutes हाउ एक्सपीरियंस यू आर और नॉट, दैट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। बट द मेन थिंग इज दैट कि आपको कोई हुक स्टेप मिस नहीं करना चाहिए। सो द ग्रोथ इज, if I add into it, a growth is not only the LinkedIn, the growth is LinkedIn, resume, personal branding, how you speak to people, your PR, of how from for whom you're connected with। ये सब चीज़ें बहुत मेहनत, मतलब बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो शायद आप एक अच्छा पैकेज बनते हैं। और these are the Also, yeah, also there's one thing कि आप यूनिवर्सिटी तो पढ़ रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक चीज़ तो पढ़ रहे हैं, बट आप साथ साथ एक स्किल भी सीखें। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको एक बेसिक चीज़ सिखा रही होती है, बट उसका आप एडवांस लेवल अगर आप स्किल सीखते हैं, सर्टिफिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक चीज रह फॉरेन गई थी, हाँ सॉरी सॉरी कंट्रीज। मैंने ये चीज नहीं पूछी, शायरी सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ। I have seen a lot of people are doing what I say certifications and courses. I personally also do that in my field, related to my field. Do you think these are the things that can also up level कह लें या उसको आप स्किल आपको कर सकती हैं और ये एचआर देख रहा होता है? Does that make Yeah, sense? that's actually very important. Certifications, because if in foreign countries वो आपकी डिग्री नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि आपने सर्टिफिकेशंस क्या किए हैं, because certifications are specific, like वो आपको कोई स्किल दे के जाती हैं, unlike
एक यूनिवर्सिटी में आपने जो पढ़ा होता है, तो एग्री। सर्टिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस टाइप ऑफ कोर्सेज एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट इंक्रीजेस, एक आपकी नॉलेज भी बढ़ती है एंड देन आपके चांसेस भी बढ़ते हैं। तो इवन अगर आप लिंक्डइन पे कोर्स करते हैं तो वो आप अपडेट करता जाता है साथ साथ, एंड our परफेक्ट। recruiter can also see that. परफेक्ट। थैंक यू शारीन, थैंक यू सो मच। इट्स आई एम प्रीटी मच श्योर काफी कुछ नॉलेजेबल इसमें से लोग जो है वो सीख सकते हैं, और वो उनको हेल्प आउट करेगा उनके कैरियर में। थैंक यू सो मच शारीन, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank टाइम। you. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू।